ਅੱਖਾਂ ਕਰ ਇੱਧਰ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਠੇਕਾ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ। ਮਾਈਂਡ ਯੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਮਾਈਂਡ ਯੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਮਾਈਂਡ ਯੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਦੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ ਚ ਬਣਾਓ। 13-0 ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ, ਜਿੰਦਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2022 ਚ ਜਿੰਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਜਿੰਦੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਇਹ ਜਿੰਦੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਚਾਬੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਚਾਬੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਬਾਜਵਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਕੇ ਭੱਜਣਗੇ, ਹੁਣ ਭੱਜਣਗੇ ਹੁਣੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣ, ਇਹਨੇ ਜੀਭ ਤੇ ਲਾ ਦੋ। ਸਾਰੇ ਤੂੰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਓ ਮਿਸਟਰ ਬਾਜਵਾ ਹੈਲੋ, ਅੱਖਾਂ ਕਰ ਇੱਧਰ। ਪੌਣੇ 2 ਵਜੇ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੌਣੇ 2 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਉੱਠੇ। ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਗਰੀਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਗਰੀਬੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫੁੱਟ ਬੁਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਯਾਦ ਆ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੜਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮਟਨ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। 726 ਮਰਵਾ ਲੈ, 726 ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸੱਚ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਸੱਚ ਸੁਣਦੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਧਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜਣਗੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅੰਦਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਪਕਸ਼ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸੁਣੇ, ਉਹ ਭੱਜੇ ਨਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਗਿਫਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਸੱਚ ਸੁਣਿਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਕਦੋਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੈਠੋ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਦਾ ਲਾਉਣਾ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਕੇ ਭੱਜਣਗੇ ਹੁਣੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣ, ਇਹਨੇ ਜੀਭ ਤੇ ਲਾ ਦੋ। ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। 1.5 ਸਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ। 726 ਮਰਵਾਤੇ। ਕਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਵਾਈ 726 ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਆ ਗਿਆ। ਬੜ ਚਲੋ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਸਰ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਇਹ ਭੱਜਣਗੇ ਹੁਣ ਹੁਣ। ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੋ, ਬੈਠੋ। ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਿਸਕਟਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋ 726 ਮਰੇ ਸੀ ਲੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਕੱਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫਲੋਰ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਬਾਈ ਨੇਮ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸੀਐਮ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀਐਮ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਲੈ ਕੇ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਸ਼ਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਰੱਖਣ ਦਿਓ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਰੱਖਣ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਪੜੂੰਗਾ। ਚਲੋ ਐ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੈਠੋ। ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਹੋਇਆ ਟੋਕ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਠੇਕਾ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ। ਹਾਂ ਸਮਗਲਰਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਈਆਂ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਗਿਆ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਮਾਈਂਡ ਯੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਜੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਬੋਲਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪਰ ਬੈਠਣ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬੰਦੇ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਦਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ।
ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ, ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਬੈਠੋ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਆਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਆਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆ ਇੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੱਲਾਂ ਉਮੀਦ ਜਾਣ ਤੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫਿਰ, ਗੱਲਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਤੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਔਰ ਜੋ ਮੀਰ ਭਾਈ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ 150 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ। ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਤਾਲਾ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਲਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾ। ਤੇ ਬੈਠੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਰੋਜ਼ ਭੱਜਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਭੱਜਦੇ। ਹਾਂ ਤਾਲਾ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਤਾਲਾ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਪਕਸ਼ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਬੈਠੋ 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 ਜੀ, ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠਣਗੇ। ਬੈਠੋ ਜੀ, ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ। ਆਪਣਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਗੇ ਜੀ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਨਾ। ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਾਤਾ ਕਿਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੱਚ ਸੁਣੋ ਫਿਰ। ਕੀ ਤੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਸਰ 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 ਤੂੰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਦੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਦੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਇੱਥੇ। ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ ਚ ਬਣਾਓ। ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ, ਲੈਣੇ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਈ ਚ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣ। 13-0 ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ, ਜਿੰਦਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2022 ਚ ਜਿੰਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਜਿੰਦੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਇਹ ਜਿੰਦੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਚਾਬੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਚਾਬੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਬਾਜਵਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋੜੀਏ ਜੀ। ਇਹ ਤੂੰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬੈਠੋ ਜੀ। ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੂਰੇ। ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ। ਅੱਖਾਂ ਕਰ ਇੱਧਰ। ਪੌਣੇ 2 ਵਜੇ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਂ 11 ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ। ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਗਰੀਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਗਰੀਬੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਮੁੜ ਜਾਓ, ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੁੜ ਜਾਓ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਗਲਤ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 70% ਕਾਂਗਰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਟਕੇ ਰਹੋ। ਬੈਠੋ। ਸਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠਣ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਣ। ਬੈਠੋ जी, बैठो। डॉक्टर साहब बैठो, राजा जी बैठो, अमन जी बैठो। यही कहना चाहता हूं कि इनके झूठ का पर्दाफाश हो गया। वो सनी देओल एक्टर धांसू, वो कहता था तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। ऊंचे लंबे लगते हैं ये, मैंने नजदीक से देखा है। ऊंचे लंबे लगते हैं लेकिन बांस की तरह खोखले हैं अंदर से।
और मेरा राहुल भाई, मैं उसे भी मिला हूं, गन्ने की तरह है, अंदर से भी मिठू मिठू और बाहर से भी मिठू मिठू। ठोको ठोको, भाई के नाम पे ठोको। $40 कम हुआ, $40 कम हुआ ऑयल बैरल का। और कितने बड़े जबरदस्त आनंद शर्मा जी, इनकी स्पीच सुन के मुझे बड़ा आनंद आता है। इन्होंने बताया सवेरे, तो फिर क्यों नहीं कम हुए रेट, क्यों नहीं कर कम हुआ? सरकारें भंवरे की तरह होती हैं, शास्त्र लिखता है, वेद लिखते हैं, सरकारें भंवरे की तरह होती हैं कि फूलों का रस भी ले लेती हैं कर्ज के तौर पे, और फूल भी खुश और भंवरा भी खुश। लेकिन तुम तो खून चूसने वाली जोंक बन गए, खून चूसने वाली जोंक। तुमने तो तबाह कर दिया हिंदुस्तान, बर्बाद कर दिया हिंदुस्तान। जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स, ठोको, मैं झूठ बोल रहा हूं? गब्बर सिंह टैक्स। क्या मॉल में आज ग्राहक है? चिदंबरम साहब तो हाई फाई बात करते हैं, मैं जमीन से जुड़ी हुई बात करता हूं, बिल्कुल जमीन फाड़ के आवाज आ रही। बिजनेस तबाह हो गए। जो किसान अन्नदाता था वो भूखा मर रहा है। जो मकान बनाता था कारपेंटर, उसके पास मकान नहीं है। और जो बुनकर कपड़े बुनता था हमारे लिए, वो नंगा खड़ा है। मोदी साहब नंगा खड़ा है। और फिर माल्या के साथ टफी टफी और नीरव मोदी के साथ लवी डवी। ठोको ठोको, ताली ठोको। दोनों चोर हैं, दोनों चोर हैं, पक्षपात नहीं होना चाहिए। चोर चोर मौसेरे भाई। नीलाम करके रख दिया इन्होंने देश को, गरीबों का, हम जैसे लोगों का खून पसीना, उसकी कमाई खा ली इन लोगों ने। इसलिए ये कांग्रेस प्रण करती है, प्रण करते हैं, आजादी की शाम नहीं होने देंगे, वीरों की समाधियों को बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक तन में गर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने। मोहतरमा, अगर तुमने टल्ली बजाई तो फिर बीजेपी की पुंगी नहीं बजेगी। सॉरी। चंद सेकंड के बाद चलते हैं वीडियो के बकिए से की तरफ। मोदी पाकिस्तान के खिलाफ बोला तो सरदार ने ऐसी ठुकाई की कि असम्बली गूंज उठी। मजीद इसके ऊपर सरदार क्या बोलते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। भैया मुझे माफी मांगनी पड़ेगी, आजकल विमेन एम्पावरमेंट का जमाना है। शादी के पहले मेरी मूछें खड़ी होती थी, आज देखो ठक करके नीचे होगी। सोनिया जी के सामने मैं इनका तिरस्कार कैसे कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं। मैं कोई भाषण देने नहीं आया था दोस्तों। कांग्रेस की आत्मा, मेरे पिता 42 साल मेरी मां कांग्रेस के लिए मेहनत करती रही। मेरी तो ये घर वापसी है, घर वापसी। और मेरी एक ही तमन्ना है और मेरा भी एक प्रण है। पता नहीं कुदरत को क्या मंजूर है और कुदरत क्या चाहती है। मैं योगी हूं, योग में लीन रहता हूं, घंटों ध्यान में, घंटों। और सच्चिदानंद, इसीलिए सत्य का उपासक हूं। वो सत्य जो चित्त को आह्लादित कर दे, उस सत्य में लीन रहता हूं। मैं अपने आराध्य सदाशिव शंभू की आज सौगंध लेता हूं। अपनी नेक मां जिसका मैंने दूध पिया था, उसके कर को उतारने के लिए आज ये वचन देता हूं। अपने पूर्वजों का आशीर्वाद अपने सर पे लेके कहता हूं कि जब तक मेरी धमनियों में लहू है, राहुल भाई को लाल किला पे झंडा चढ़वाए बिना नहीं मानेगा मैं, नहीं।
बात मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर मैं वो बात नहीं करूंगा तो फिर मैं एक कृतघ्न साबित होऊंगा। मेरी मां कहा करती थी, बेटा भगवान के पास कोई जुर्म करके जाना, तेरा जुर्म माफ हो जाएगा, लेकिन कभी एहसान फरामोश बन के कभी नहीं जाना, क्योंकि फिर एहसान फरामोश इंसान का बोझ धरती ढोती नहीं। मैं सबसे ज्यादा एहसान प्रियंका जी का मानता हूं। मैं नहीं आता था भाई अपनी योग लीला से बाहर, मैं सबसे ज्यादा एहसान प्रियंका जी का मानता हूं। उनके साथ एक बार मिलना क्या हुआ कि मेरे अंदर विश्वास जग गया कि भारतवर्ष बदल सकता है, बदल सकता है। मैं उन्हें मानता हूं, मैं उन्हें जानता हूं। और बां जना की पकड़िए, सिर दीजिए, बां ना छोड़िए। अगर बां पकड़ ली, सिर जाए तो जाए, बां नहीं छूटेगी, यह मेरा वचन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, कोटम कोट धन्यवाद करता हूं कि आपने यहां इस महान मंच के ऊपर इन बड़े लोगों के सामने, आई एम ड्वार्फ्ड इन दिस ऑगस्ट कंपनी, इन बड़े लोगों के सामने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आ गया। और सच पूछो, मैं जब भी सोनिया जी के सामने खड़ा होता हूं, कल कुर्सी भी लगाई थी लेकिन मेरी घुग्गी पोस्ट हो जाती, क्योंकि आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, पारस और सोनिया जी का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। कमाए होंगे अंबानियों ने पैसे, बने होंगे बड़े बड़े सेठ, लेकिन पिछले 20 साल में अगर किसी ने सबसे ज्यादा इज्जत कमाई है तो हमारी अध्यक्षा सोनिया जी ने कमाई। यह सत्य है और सिद्धू सत्य बोलता है। जैसे अणु के बिना परमाणु नहीं बनता, व्यक्ति के बिना समाज नहीं बनता, वैसे ही कांग्रेस बिना कार्यकर्ता के नहीं बन सकती। सिकंदर हो तुम, सिकंदर, जिताने वाले सिकंदर, अलग जगाने वाले सिकंदर। अरे कांग्रेस हारी होगी तो किसी लीडर की वजह से हारी होगी, तुम तो जिताने वाले हो दोस्त। सिकंदर हो तुम, सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए जमीन पे नहीं गिरता, गिरते हैं हजारों दरिया किसी समंदर में, पर कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। उन पे देखने वाली चीज नहीं है, बाढ़ कोई हेलीकॉप्टर में हवा में जाके मुआयना करने वाली चीज नहीं है। अगर कैमरा लगाना ही है तो उस गरीब के घर में कैमरा लगाना चाहिए जिसकी वर्षों की कमाई एक पल में मिट गई, जो अपने बच्चों को रोटी नहीं खिला सकता और सरकार उसे क्या मुआवजा देती है। मैं उस बात के ऊपर चर्चा करना चाहता हूं, वो धुरी है जिसके ऊपर मैं अपनी इस डिबेट को घुमाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आज सरकारों की सबसे बड़ी पूंजी है लोगों का विश्वास। आज भी चाहे कोई आम आदमी हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे व्यापारी हो, वो भरोसा किए बैठा है सरकार के ऊपर कि कोई भी प्राकृतिक आपदा अगर आएगी तो सरकार मुझे बचाएगी। मैं शत शत प्रणाम करता हूं उन लोगों को जो हर साल डूबते हैं और हर साल डूबने के बाद वो 10% सरकार से मुआवजा लेके फिर से सरकार के ऊपर भरोसा करते हैं। धन्य हैं वो लोग जो 3-3 बार डूबने के बाद भी सरकार पे भरोसा करते हैं, और धन्य है वो सरकार जो गूंगी और बहरी होकर उनकी एक नहीं सुनती। अध्यक्ष महोदय, जिस देश में टमाटर 75 रुपए किलो हो, हल्दी 250 रुपए किलो हो,
जिस देश में दाल 100 रुपए किलो हो, वहां मुआवजे के तौर पे कैलामिटी रिलीफ फंड से एक आदमी को 20 रुपए मुआवजा मिलता है। 20 रुपए मुआवजा। इससे बड़ी शर्म की बात क्या है कि अगर उसके जानवर भी जो मरे हों, उनके चारे के लिए भी, जिनका दूध वो पानी में बहाता है, उनके लिए भी 20 रुपए मुआवजा। अध्यक्ष महोदय, चारा 125 या 150 रुपए से कम नहीं आता। और बुआई अगर आप लें, 1 एकड़ की बुआई अगर आप लें आज, तो करीब करीब 2000 से 2500 रुपए 1 एकड़ की बुआई में लगते हैं। और सरकार कैलामिटी रिलीफ फंड में वो मुआवजा 1600 रुपए तय करती है। 1600, जहां उसे उपज के कम से कम नहीं 15-20 हजार रुपए मिलते हैं। ठेका देता है वो 25,000 रुपए के का। मिट गया जब मिटने वाला, फिर सलाम आया तो क्या, दिल की बर्बादी के बाद उनका पयाम आया तो क्या। जाके देखिए अध्यक्ष महोदय, लोग क्या कह रहे हैं। लोग क्या कह रहे हैं कि जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हमारे काट खाने को। क्या आज सरकार जख्मों पे मरहम लगाने की बजाय नमक छिड़केगी? आई स्ट्रांगली एडवोकेट द चेंजिंग ऑफ दीज नॉर्म्स। दे आर लाफेबल। अध्यक्ष महोदय, ये नॉर्म्स जो हैं वो गरीब की गैरत के ऊपर एक बहुत करारा तमाचा है। इंसान घोड़ी से गिर के उठ सकता है, अपनी नजरों में गिर जाए, उसे उठाने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। आप गरीब को उसकी अपनी नजरों में गिरा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत सरकार रिलीफ देती है। अभी कुछ दिन पहले वो चित्रा जहाज डूब रहा था, टीवी वाले चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, जहाज डूब रहा है। 3 दिन में जहाज डूबने के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग कॉल की गई। 3 दिन बाद। यह है डिजास्टर मैनेजमेंट। पंजाब में डिजास्टर मैनेजमेंट का जो ऑफिस है, उसमें एक पीएन बैठा है और एक भी टेक्निकल स्टाफ नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ये वो लोग हैं जो कपड़ा बेचते हैं, कपड़ा बर्बाद होने के बाद 200 रुपए वाला कपड़ा 20 रुपए मीटर बेचने की कोशिश करते हैं, तो भी कोई वो कपड़ा खरीदता नहीं है। तो मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि पानी की जो मैनेजमेंट है, अगर हम प्रिवेंशन के ऊपर जोर दें तो ये जो मुआवजों का चक्कर है उसमें से निकल सकते हैं। विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा था, बेटर प्रिवेंट एंड प्रिपेयर देन रिपेंट एंड रिपेयर। 60 साल से हम रिपेंट और रिपेयर ही कर रहे हैं। वी हैव नेवर प्रिवेंटेड एंड प्रिपेयर्ड। अगर हमने कभी डिसिल्टेशन की होती, अगर हमने कोई प्लान बनाया होता, और ये उन लोगों की बात कर रहा हूं जो 2% एरिया में से 60% देश का अनाज पैदा करते हैं। 60% अनाज इस देश का पंजाब और हरियाणा से आता है। और आज उन लोगों को ऐसा करारा तमाचा, मणियों को अगर धूल में फेंक दोगे, उन्हें सोने का आधार नहीं दोगे, तो मणियों की चमक कम हो जाएगी। अंधेरों का दर्द क्या जाने जो खुद उजाले हैं, डूबने की टीस क्या जाने जो खुद किनारे हैं। आग के दरिया में डूबने का दर्द हमसे सीखो। पंजाब और हरियाणा ने कई उजड़े हुए गुलशन संवारे। इसलिए मैं आज उन लोगों की गुहार लगाता हूं, आपसे विनम्र विनती करता हूं कि जब यह बाढ़ आई थी, सेंटर की तरफ से ना कोई स्टैंडिंग कमेटी की टीम गई, सेंटर की तरफ से ना ही कोई मुआवजा देने की बात हुई। करीब करीब 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। करीब 7 लाख एकड़ जमीन जो है वो आज बाढ़ग्रस्त है और किसान त्राहिमाम कर रहा है। और सेंटर का कोई भी आदमी अभी तक वहां पूछताछ करने के लिए भी नहीं गया। हां, बंसल साहब तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए थे, फ्लड एरियाज में नहीं गए। सो
नहीं नहीं, मूड ऑफ बिल्कुल नहीं, मूड ऑफ बिल्कुल नहीं। हाँ? तो अध्यक्ष महोदय, मैं यही विनती करता हूं आपसे कि एक अश्योरेंस सरकार दे कि टाइम बाउंड एक फ्यूचर के लिए पॉलिसी सरकार बनाए, जो प्रेपरेशन के लिए नहीं, प्रिवेंशन के लिए हो, और आने वाले समय में हम लोग मुआवजों पर निर्भर ना रहें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा, सरदार ने किस तरह मोदी की रगड़ाई की है। मज़ीद अगर इस तरह की भारतीय मीडिया की रिएक्शन वीडियो अगर आपने देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट 4 को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।